السلام علیکم، ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے ساتھ میں مرتضیٰ سعید۔ آج ہم موجود ہیں F11 میں، جہاں پہ ایک سٹال ہے، سجی سٹال ہے، اس کا نام ہے بلوچی سجی۔ آپ میرے کیمرے میں اگر آپ کو دکھا سکیں یہ کتنی اچھی طریقے سے سجی بنا رہے ہیں۔ یہاں ہماری لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، ہمارے ساتھ رہی گا۔ مزید ہم آپ کو اس کی ریسپی بھی دکھائیں گے، آپ کو یہ سجی کیسے تیار ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمداللہ۔ آپ کا نام؟ عبد الرحمن۔ آپ نے یہ جو سٹال لگایا یہ کتنے عرصے سے لگایا ہو یہاں پہ؟ یہ 14 سال ہو گئے۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ بلوچی سجی۔ بلوچی سجی۔ تو سر آپ سجی کے فوائد تو بتائیں، سجی کھانے کے فوائد کیا ہیں؟ سجی کے تو بہت فائدے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک تو اس میں کولے پہ جو چیز پکتی ہے نا، اس میں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، اب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یہاں پہ جتنے بھی ہیں MN MPA یہ سارے میرے پاس ادھر آتے ہیں۔ یہ ZKB والے ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ ڈاکٹر صاحب وہ آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ چودھری بٹ جو وہ ہیں تجزیہ کار ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے پاس۔ عمران عباس آئے 2 بار، ایک عدنان سمی ہے وہ بھی آئے ہیں، یہ عمر گل وغیرہ یہ بھی آئے ہیں یہاں پہ کھانے کے لیے، اور کافی لوگ آتے ہیں میرے پاس۔ اس کی آپ ہمیں ذرا تھوڑی ریسپی شیئر کریں گے، یہ بناتے کیسے ہیں آپ؟ بناتے تو یہ ایسا بنتا ہے کہ پہلے جو ہے نا یہ اوپر ہم اس کو لگاتے ہیں نا لکڑ، تو اس سے یہ جو پانی نکل جاتا ہے نا، تو پانی جو جتنا یہ اس کا گندا وہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نیچے آتا ہے تو کولوں پہ اس کا اپنے مسالے اندر ہوتے ہیں، یہ بالکل انڈے کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ پھر بھی جو جراثیم ہوتے ہیں نا، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یہ چکن ہے، یہ جراثیم ہے اس میں، مگر وہ چیزیں اس میں ختم ہو جاتی ہیں بالکل، جو ہے نا اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ کھانے میں بھی جو ہے نا آپ کو اس طرح وہ نہیں ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ کیا مطلب چھوٹے گوشت کی طرح یہ چیز ہوتے ہیں۔ اس کی جو میرینیشن کرتے ہیں، اس کے اندر جو مسالے جات ڈالتے ہیں وہ کیا کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر؟ سر یہ تو کم از کم کوئی 18 قسم کے مسالے ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ ہم ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی کسٹمر آتا ہے کہتا ہے یہ نارمل اسپائسی ہے، ہمیں ایکسٹرا اسپائسی چاہیے، اس کے لیے کیا کرتے ہیں سر آپ؟ اس کے لیے ہے وہ الگ مسالہ بناتے ہیں گھر میں، اور اپنا گھر کا مسالہ ہے وہ ڈالتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اسپائسی ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ مرغی کہاں سے پرچیز کرتے ہیں آپ؟ سر یہ منڈی سے۔ یہ کتنے میں دے رہے ہیں سجی؟ یہ 500 میں۔ کتنے کے جی کی ہوتی ہے یہ؟ یہ 1.5 سے اوپر ہوتی ہے، 170 مطلب یہ ہوتا ہے تقریباً 1 کلو اور 700 گرام۔
1 किलो 700 ग्राम। तो सर इसमें क्या प्रॉफिट है? इसमें आप मसाले मैरिनेशन कर देते हैं, 18 मसाले भी डालते हैं आप, फिर ये कोयला है, इसके अलावा और भी खर्चे हैं, यहाँ पे कोई रेंट वगैरह भी है इसका? सर हाँ, रेंट भी है। असल ये होता है ना कि कभी हम कमा लेते हैं, कभी ये जो है ना रखते हैं, ये तो जो है ना कभी जो है ना ज़्यादा कमा लेते हैं, कभी कम कमा लेते हैं। रेट हमारा एक ही है, फिक्स है, 14 साल से यही चल रहा है। एक दिन में कितनी सब्जी आपकी सेल हो जाती है? तकरीबन 60-70 निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 60-70 सब्जी निकल जाती है। निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने वर्कर कितने रखे हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे 4 कर रहे हैं, अभी 3 हैं, और जो है ना एक जो है ना वो छुट्टी पे है। क्या सैलरी दे रहे हैं इन्हें? एक को 1000 दे रहा हूँ, और बच्चे को 500 दे रहा हूँ, एक को 200 दे रहा हूँ, और दूसरे के भी 200 दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की फजल है। अच्छा सर, आप यहाँ सब्जी लेने आएंगे, इसके बारे में आप क्या कमेंट्स करेंगे इस सब्जी पे? तो तकरीबन 3 साल से यहाँ से सब्जी ख़रीद रहा हूँ, और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना हो तो इफ़्तार के वक्त हम यहाँ से कम से कम 2 सब्जी उठा के ले जाते हैं, बल्कि मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग जो हैं वो सब्जी उठा के ले जाते हैं। इसका जायका बहुत यूनिक है, सफाई का भी ख़ास ख्याल है, मसाला भी इसका A1 है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी इसी किस्म की जगहों की प्रमोशन की जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, और उसमें थोड़ा सा जो है सफाई का जैसे कि ये लोग ख्याल रख रहे हैं उसी तरीके से ख्याल रखा जाए, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जो हमारे रिवायती खाने हैं ये मशहूर भी हो जाएंगे और लोग भी इसके लिए आएंगे। और यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत से लोग जो हैं ये ख़ास तौर पर ये E11 और F11 और F10 के जो लोग हैं, अच्छे मिडिल क्लास के, अपर क्लास के, इवन मज़दूर कार तबका जो भी हैं, वो टाइम निकाल के यहाँ पे आके इसकी सब्जी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इसका जो है अंदर से वो कच्चा नहीं होता, यानी बाज़ जो हैं सब्जियाँ या ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें वो खून शून होता है, पका हुआ नहीं होता। बहुत तरीके से मदम आग के साथ ये इसको पकाते हैं, और उसका जो टेस्ट है और जो जायका है वो बहुत ठीक ठाक है। ये उसके साथ जो रायता देता है, दही शही जो देता है, वो भी अच्छा होता है। मतलब ये कि उसमें किसी किस्म की वो गड़बड़ और मिलावट नहीं होती। तो मैं तो समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बंदा जो है आगे बढ़ेगा और कामयाबी से हमकिनार होगा। और अभी उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं यहाँ पे दुम्बी की सब्जी भी शुरू कर रहा हूँ, और साथ साथ जो हैं ये जो दरिया की मछलियाँ हैं, ये तो आग फार्म की होती है ना, दरिया की मछलियाँ जैसे कि सामन हैं, या कि जो रेड स्नाइपर हैं, या जो और इसी किस्म की चीज़ें हैं मछलियाँ, इनकी जो है यहाँ पे ये बारबेक्यू करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इसके आगाज़ से, बल्कि चप्पल कबाब के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो एक लजीज़ खानों में से एक लजीज़ डिश है, वो भी ये शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि अगर इस तरीके से ये काम करता रहेगा और लोग आते रहेंगे, तो ये एक हाइजीनिक और बहुत टेस्टफुल सब्जी हैं, और इसके साथ साथ ये मज़ीद रिवायती कहानी शामिल कर रहे हैं। मैं दुआगू हूँ कि ये बंदा आगे बढ़ें, और इसी तरीके से हमारे मुल्क के और भी लोग जो इसी फ़न में महारत रखते हैं वो आगे आएँ और इसी किसी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। बहुत सर वैसे अभी इन्होंने बात की यहाँ पे MNA बड़े फ़नकार और गुलकार यहाँ पे आते हैं, इनसे सब्जी लेते हैं। वैसे सर आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ टूरिज़म का, खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डिपार्टमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर रहा हूँ 6 साल तक। और मैं आपको इसी वजह से बता रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ खाने देखे हैं, जर्मनी में, फ़्रांस में, हर जगह पे, जैसे तुर्कों की जो एक वो डोनर्स होते हैं, डोनर कबाब, वो भी हम खाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब्जी जो हैं माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी हैं, और हम खाते हैं। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि लोग आके यहाँ पे इनको खा लिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।